Vastu class. Okay, so here we are going to see about advanced Vastu concept. Okay, so advanced Vastu concept में we will cover up the 4 zones जो generally लोग देखते हैं. People जैसे गुरुजी महाराज वगैरह आते हैं, they see about north, east, okay, south, west, 4 zones देखेंगे. Then little more थोड़ा सा advance होने के बाद they will go for 8 zones. 8 zones में क्या हो गया? नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट. इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट, साउथ और ईस्ट के बीच में साउथ ईस्ट, साउथ और वेस्ट के बीच में साउथ वेस्ट, वेस्ट और नॉर्थ के बीच में नॉर्थ वेस्ट. So they have started seeing 8 zones. What we are going to understand or what we are going to study is, okay, 16 zones. 16 zones. So that is what 16 zones में, okay, what are the 16 zones we have? 16 zones में we have sixteen zones. We will have north. The opposite direction is south. Always, if this is north, your right hand of the north is east. That is a rule, general rule. If this is north, my right hand wherever it points is east. If this is north, my right hand wherever it points is east. So north का जो right side जाएगा east, east का opposite direction is always west. ये 4 तो हो गया. Then we have a zone called northeast. We have a zone called southeast. Then we have southwest. Then we have northwest. So 8 zones हो गया. Now we have a zone called in between north and northeast. We have north, northeast. Between east and northeast we have east, northeast. Between east and southeast we have east, southeast. Between south and southeast we have south, southeast. Between south and southwest we have south, southwest. Between west and southwest we have west, southwest. Between west and northwest we have west, northwest. And between north and northwest we have north, northwest. So we will try to understand each and every property of one north, second is north, northeast, third one is northeast, fourth one is east, northeast, fifth one is east, sixth one is east, southeast, seventh one is southeast, eighth one south, southeast, ninth one south, 10th one south, southwest, 11th one southwest, 12th one west, southwest, 13th west, 14 west, northwest, 15 northwest, and 16 north, northwest. So we will understand the beneficial effects of all these 16 zones in our advanced classes. Now in these 16 zones, okay, what element they belongs to, okay, what is a negative element in that area, how do we rectify this vastu defect, all right, what are the energy enhancers, okay, what are the energy enhancers, all right. Now which color is friendly, which color is anti, in these zones, role of staircase, okay. Now in these zones, the role of toilets, in this zone the role of beds, okay. Like this we will try to understand each and every parameters in this area completely. So this will be our advanced concept where we will try to understand this. What the other people on the outside teachers, they teach you the zone,
the effect, then they say this is belongs to blue color. Whatever disturbances, you put blue color. They say this is east, south, east to south, this is green color. Whatever it is that you put green, south is red. So like this, but that doesn't correct. If you want to really understand, you need to know about 5-element theory. If you want to really understand, you need to understand of all 5-element theory. We will be trying to understand it. First rule is 5-element theory. यहाँ से लिखना चालू कर लो आप. I am directly going to points. So वास्तु का history क्या है, कौन किया, we don't know. वास्तु पुरुष, the concept of वास्तु पुरुष is which is more and more advanced. When we say वास्तु पुरुष के बारे में पढ़ना, देवता energy field के बारे में पढ़ना, how does each and every देवता energy field will work, this is the concept. जैसे वास्तु पुरुष रहते थे, उनका जो concept है, when it has been created, he is very huge structure. वास्तु पुरुष जो रहते हैं, वैसे very huge structured persons. So उनका एक वरदान मिला था कि whenever anybody construct a house, he will go and establish there. So that is why we need to plan according to Vastu Purush. Who is Vastu Purush? What happened to him? Why he is in every building? What are the options available for him? Okay, everything we'll be studying in the tomorrow's class. All right. Okay. Now 5-element theory का जो concept है, in 5-element theory we have fire, अग्नि बोलते हैं ना, fire element. Then we have earth element. Okay. Then we have metal or air element. Air, vayu tattva. Then we have water element. Then we have wood or space element. Then we have fire element. If you understand, you can see a fire helps in the production of wood, earth, ashes, जैसे राख बन जाती है ना, अग्नि के बाद क्या रहता है, राख रहता है. अर्थ इज राख का मंडल बोलते हैं. सो फायर प्रोड्यूसेस अर्थ. सो a fire will produces earth. This earth will produces metal. Earth contain lot of minerals, metals. So earth will be the production house for the metal or air element, pani tattva. And this water, okay, now air, minerals, metals combine to form water element. Okay, water helps in the production of wood or space. Okay, water can occupy that evaporation, water, everything into the space. And then wood helps in production of fire. So this cycle where each one helps in production of another, okay, this is called production cycle. This is called production cycle. So each and every element will help in production of other element. So somewhere if my earth energy is weak, I will try to utilize my fire element over there to produce earth energy. Somewhere if my space energy is weak, I will try to utilize the water element, install an water element over there so that I can increase the space energy. So when one element produces another, this element becomes mother. This element becomes sun. A mother helps in production of son. Son bolo, daughter bolo, anything now. Okay. So mother and son.
So now in this combination, if I take it between earth and metal, earth is mother, metal is sun. If I take these two elements one after another, this become mother and this becomes sun. If I take these two, water becomes mother, space becomes sun. If I take last these two, this becomes mother and this becomes sun. So this theory is called mother and son law. Each element is necessary to produce the other element. Okay, each element is necessary to produce another element is the base. But if there is only production, there is no balance. बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, balance नहीं मिलेगा. So we need some control. So there should be a control cycle also. So again I will put here fire, earth, air, water, space. Fine. अब फायर कैन, एयर में क्या था, मेटल भी था, स्पेस में क्या था, वुड भी था, ट्रीज वगैरह. ओके, अब फायर कैन मेल्ट अ मेटल और इट कैन टेक आउट द एयर. जब तक हवा रहेगा तब तक फायर, फायर टू मच तो पूरे हवा को ले लेगा. सो फायर कैन कंट्रोल द एयर. ओके, फायर कैन कंट्रोल द एयर. अ मेटल कैन कट द वुड, air can blow away the trees, a metal can cut the wood, space. Okay, now a wood, if it is very strong, can have a very good control on the earth, पकड़ के रखेगा, strong wood. So and wood can control earth. Earth, if it is very strong, will absorb water. Earth can control water and water can control the fire. So ये जो star है, this is called destructory. कंट्रोलिंग साइकिल रखो इसका नाम. आक्यूपंक्चर में दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रक्शन साइकिल. ओके, सो यू हैव प्रोडक्शन साइकिल, you have destruction cycle. This is how you to understand how to play with the elements when you are balancing vastu. Just by keeping a copper coin, which denotes copper is fire. Okay, just by utilizing a fire, I can control if the air element is very high. Okay, now this is one air. Just by utilizing copper, I can create energy in the earth wherever it is weak. So a copper can be used to control one, a copper can be used to produce one. Okay, control cycle and destruction cycle, you need to understand this cycle if you want to really go into elemental vastu, working on elements. If for example, if this is a house, okay, if this is a house, इसका southeast is cut, समझ लो here southeast zone, this is northeast zone, this is southwest zone, this is northwest zone. ये जोन ही नहीं है उनके, उनका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा है. ओके, कोई कोई बिल्डिंग नहीं रहते, इनका बिल्डिंग का स्ट्रक्चर ऐसा ही है. सो व्हाट आर वी लैकिंग हियर, साउथ ईस्ट, विच डिनोट्स फायर. यहां पे मुझे एनर्जी बढ़ाने के लिए आई कैन स्टिक copper coins in this area, copper pyramid in this area, copper के strip in this area, red color का कोई भी painting. So I am going to create an elemental energy over there rather than breaking the wall. Okay, now we will be learning about extension and depletion zones. जैसे I can take this as two formats. समझो हमने क्या बोला, ये साउथ ईस्ट कट है, ठीक है, ये क्या था, साउथ वेस्ट था, ये क्या था, नॉर्थ ईस्ट था, ये क्या, नॉर्थ वेस्ट था. ठीक है, हमने क्या समझा इसको, व्हेन आई टुक दिस, समझो कि वी अंडरस्टूड दैट दिस इज द जोन अवेलेबल. व्हाट डिड वी से, साउथ ईस्ट नहीं है. नाउ आई कैन आल्सो से इन दिस फॉर्मेट, वी हैव ओनली दिस जोन अवेलेबल, आई कैन से साउथ वेस्ट एक्सटेंडेड आल्सो ना. I can either say it is a southeast, available ही नहीं है भाई, or I can going to say it up. See आपका जो ये zone है,
ये जो पोर्शन है साउथ वेस्ट आपका एक्सटेंडेड है, ज्यादा है, तो उसको हाफ, सो वी कैन स्ट्रिप हियर एंड मेक इट वन हाफ. So when we strip this, we'll get all four. So we have two options. Never think in one perspective. Always think in two perspectives. ठीक है. So understood the controlling cycles and the destruction cycle. These two cycles are very important if you are working in the elemental Vastu concept. Without these, whatever you try to balance, colors, concepts, tapes, metals, materials, whatever you use, no use. कभी भी use नहीं होगा. Because many people, what they come, the toilet should not be here, they break the toilet. Okay, the wash basin should not be here, they break the wash basins. They say door should not be here, break the door to here. So what happens is, when you are breaking the energy, we need to ask in Vastu one question. Is there is a necessity for me to work on that area? For example, somebody has a toilet in the north. North, we will be understanding day after tomorrow or tomorrow session. North is for money and opportunity. और किसी के घर में मनी और अपॉर्चुनिटी आ ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ, उनका नॉर्थ डिस्टर्ब हो गया. सो नॉर्थ में क्या है, उपाय सबका है. नॉर्थ डिस्टर्ब है क्योंकि टॉयलेट है उस नॉर्थ में, उनके मनी और अपॉर्चुनिटी क्या हो रहा है, फ्लश हो रहा है. ये फिजिकली हो गया. नाउ व्हेन वी गो टू ए वास्तु, नेवर डू ए वास्तु अनलेस एंड अंटिल द सिम्टम्स मैचेस. You go to that house, you ask them like what is the purpose of doing the vastu. If the person says like सारा चीज बहुत अच्छा है सर, सिर्फ खुशियां नहीं है. Now next question you ask, how about monies and opportunities? वो सब बहुत भरपूर है सर, खुशियां नहीं है. तो इसका मतलब क्या हो गया, उसका नॉर्थ डिस्टर्ब्ड नहीं हुआ in spite of the toilet. It is not necessary a negative element in that area will disturb your vastu. Sometimes by nature they get balanced. क्या पता उनका जो बेस बना हुआ वो ब्लू कलर का टाइल रहेगा, कलर से मैटर, कलर से हम लोग ब्लू कलर का टाइल रहेगा, या उन्होंने जो सेलेक्ट किया होगा ब्लू इन एनर्जी इन दैट एरिया, सो अपने वाटर एलिमेंट को वो बैलेंस कर रहे हैं, तो वहां पे मैं वास्तु करेक्शन क्यों करना. सो नेवर डू अ कंप्लीट वास्तु करेक्शंस as a doctor. Just I am a doctor, I will match only what the symptoms you say. If you come with a headache, my rule is to find out why is the headache. That I will be teaching in the later classes. If the toilet is giving a positive effect in this area, why it is giving, we need to understand and analyze. So similarly, you understand the root cause. So when they say I don't have happiness, you will ask a question whether money is the root cause for happiness. They say no, money is sufficient. पैसे की कोई कमी नहीं है लाइफ में, सिर्फ प्यार नहीं मिलता है ना. प्यार किससे नहीं मिलता है, फैमिली पीपल से नहीं मिलता है, बाहर वालों से नहीं मिलता है, किससे चाहिए. हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट है, या वाइफ ब्रदर ब्रदर में डिस्प्यूट है, किस में डिस्प्यूट है. सो डिस्प्यूट और फैमिली का जोन होता है साउथ वेस्ट. सो गो एंड फाइंड आउट इन द साउथ वेस्ट, देयर विल बी सम एंटी एलिमेंट देयर. साउथ वेस्ट जैसे अर्थ का हो गया, अर्थ में जाके देखो या तो ब्लू कलर के चांदी के कोई सामान रखे होंगे, कि साउथ वेस्ट लॉकर होता है, और चांदी वाटर एलिमेंट हो जाता है. काफी लोग जो चांदी स्टोर करते हैं साउथ वेस्ट में, उनका वाटर एलिमेंट वीक हो जाता है. सो उस घर में आइडियाज और क्लैरिटी और स्टेबिलिटी दोनों मिस हो जाती है. सो देयर इज अ जोन वेयर एवरी एलिमेंट हैज टू बी प्लेस्ड. सो वी नीड टू फाइंड आउट, दैट्स व्हाई इट्स एन एडवांस कॉन्सेप्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एंड देन ट्रीट इट. जस्ट बाय आपका नॉर्थ ईस्ट में पानी रख दो, उसमें पानी नहीं है, साउथ ईस्ट में आग रख दो, उसमें अग्नि नहीं है, अरे यहाँ पे तो कुछ वेट रख दो, यहाँ पे पत्थर रख दो, या तो क्रिस्टल्स जमा दो, वैसा नहीं होता है. वास्तु में यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाई. अनलेस एंड अंटिल यू आर नॉट क्लियर विथ व्हाई, डोंट डू द वास्तु करेक्शंस एट ऑल. क्योंकि गॉड बाय नेचर सम और द अदर वेज. और एक है, समझो कि उनके साउथ वेस्ट में पानी का एलिमेंट आ गया, ओके, लेकिन उनके स्किल्स वगैरह सुपर्ब है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है. There is no point in going and correcting the water over there. There is no point. Now, this water element, जैसे for example southwest corner हो गया,
It denotes certain numbers. न्यूमरोलॉजी, न्यूमरो वास्तु होता है वो. It denotes certain numbers. तो वहां पे उन्होंने क्या किया होगा, 4 बोर लगाए होंगे या 4 टैंक का कुछ ना कुछ आया होगा. वो नंबर 4 विल बैलेंस दैट एरिया ऑटोमेटिकली. वहां पे वास्तु करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको. 4 नंबर के कोई भी चीज उस एलिमेंट का चीज रखो तो बैलेंस होती है. वो होता है न्यूमरो वास्तु. जहाँ पे भी थोड़ा एडवांस, ये छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स काफी सारे हैं. हमें क्लाइंट को कंफर्टेबली सेटिस्फाई रखना है. उनको किस रूप में वास्तु करेक्शंस दे सकते हो वो मायने रखता है. इज ही सेटिस्फाइड विथ योर वास्तु करेक्शन? आप करने के बाद कुछ ना कुछ तो पॉजिटिविटी उनको महसूस होना चाहिए. नाउ नाउ वास्तु का नेक्स्ट रूल, ओके, यू कैन नॉट बी अ ब्रेड विनर फॉर देयर फैमिली. आपका काम है वास्तु करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लॉट दिया है आपको. इस प्लॉट में दे कॉल यू, दे से वी आर नॉट गेटिंग इनफ मनी. ओके, वी आर नॉट गेटिंग इनफ मनी. सो मनी के लिए कौन सा जोन होगा? नॉर्थ चाहिए, साउथ ईस्ट चाहिए, साउथ वेस्ट चाहिए, ईस्ट चाहिए, वेस्ट चाहिए. नॉर्थ से अपॉर्चुनिटी मिलेगा. ओके, ईस्ट से उस अपॉर्चुनिटी को क्लाइंटल्स के साथ उसको बेटर करना पड़ेगा. साउथ ईस्ट से वो मनी कन्वर्ट होगा. साउथ ईस्ट का मनी कन्वर्ट होगा तो साउथ वेस्ट में स्टेबल होना चालू होगा. साउथ वेस्ट में स्टेबल हुआ तो ही वेस्ट में जाके सेव होगा. तो मनी कहाँ सेव? वेस्ट में सेविंग इज गुड फॉर द मनी, बिकॉज वेस्ट साइड में इट इज गुड फॉर सेविंग्स. ओके, सो मनी का जोन सब लोग साउथ वेस्ट बोलते हैं, बीरो, तिजोरी वगैरह. लेकिन वेस्ट इज ए गुड जोन प्रोवाइडेड दे नीड टू अंडरस्टैंड उनका हाउस 0 डिग्री नॉर्थ होना जरूरी है. अगर घर टिल्ट है, नॉर्थ ईस्ट दिशा में है, 25 डिग्री 23 डिग्री, देन योर जोन इज टिल्टेड. योर वेस्ट विल बिकम वेस्ट साउथ वेस्ट, which is for knowledge and savings, or it become west northwest, which is for detox and depression. तो वहां पे पैसे रखोगे तो निकल जाएगा घर से. काफी लोग साउथ वेस्ट में घर तो बना लेते हैं, बेडरूम यहाँ बना लेते हैं, साउथ वेस्ट में तिजोरी रख देते हैं. ओके, लेकिन अगर उनका घर 23 डिग्री टिल्ट है, ये साउथ वेस्ट इज कन्वर्टेड हियर, दिस बिकम साउथ साउथ वेस्ट, विच इज फॉर एक्सपल्शन. अननेसेसरी चीजों को बाहर निकालने का जोन बन गया. तो फाइंडिंग ए सेंट्रल डिग्री नॉर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट गेटिंग इन द हाउस. और नॉर्थ है और साउथ है, सूरज उगे बटी सूरज डूबे, नो. एंगल, कॉम्पस है, इसका वास्तु व्हील करके अवेलेबल रहता है. कैसे फाइंड आउट करना है ये सब मैं सिखाऊंगा. ओके, सो दिस विल बी दी क्लास का कॉन्सेप्ट. सो today we are learning how to approach people. What you will be learning, is it worth for you to come or not for the sessions? So इसलिए सारे इंट्रो आज रहेगा. कल से प्रॉपर क्लासेस चालू हो जाएगी. एक जोन के बारे में इंडिविजुअली पढ़ेंगे, 1 by 1 करेंगे. So what I said is you will be never treating a house completely. Never treat a house completely. First point, find out the symptoms first. Understand the symptoms matches with your energy, what you have understood. And if it is worthwhile, give a solution. If you don't earn money, it's okay. Don't do a negative solutions for them. Already they are suffering. That is why they called for vastu. Otherwise they wouldn't have called, right? जब तक सब अच्छा चलता है कोई वास्तु के लिए बुलाएगा नहीं? बुलाएगा. भैया इस झंझट में नहीं पड़ना है, यही बोलते हैं. लेकिन अप डाउन होने लग गया तो पहले वास्तु बता दो, घर बता दो, ये बता दो. नहीं, तो सिर्फ जब जो घर अच्छा चल रहा था अभी डाउन हुआ है ना, एक चीज अंडरस्टैंड करने की जरूरी है. A house was running good, business was running good. Okay, आप 17 साल से इस घर में हो, 27 साल से इस घर में हो. फर्स्ट 15 इयर्स बहुत अच्छा गया, लास्ट 2 इयर्स में डिस्टर्ब हो गया. अब इसमें जाके मैं बाथरूम तोड़ाऊं, एंट्रेंस बदलाऊं, डज इट मेक एनी सेंस? हाँ, यू हैव टू फाइंड आउट कि इस 2 साल में आपने किया क्या भाई. घर में कुछ चेंजेस यस, क्या कलर्स किया, तो आपने रेनोवेट किया होगा, या पूरा लाल लगा दिया होगा, या ब्लू के बच्चों का रूम है ब्लू चाहिए. अगर बच्चे साउथ वेस्ट में सो रहे तो ब्लू नहीं चाहिए. कलर्स प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बिकॉज
with the colors you start attracting or attaching yourself. जैसे ये साउथ वेस्ट का रूम है, यहाँ पे आपको रेड ब्लू ग्रीन कुछ भी नहीं दिखेगा, यू विल फाइंड ओनली बेज कलर और ब्राउनिश, अर्थ एलिमेंट है. सो आई विल ट्राई टू गो विद अर्थ कलर्स ओनली इन दिस एरिया. मेरा क्लिनिक कैबिन देखोगे वो ईस्ट जोन में है, वहां पे सिर्फ ग्रीन लाइट पेस्टल ग्रीन के टाइल्स रहेंगे. सो ईस्ट विल क्रिएट कनेक्टिविटीज. सो कलर के हिसाब से जब वास्तु करते हो ऑड नहीं दिखना चाहिए. व्हेन यू क्लोज अ डोर इट इज शुड बी वन यूनिक कलर्स. आपका इंटीरियर भी बेटर दिखता है एंड यू आर इन अ प्रॉपर. जस्ट लाइक दैट आई लाइक रेड करके रेड नहीं लग सकते हो, ये गलती होता है, ये गलती होता है. नेक्स्ट मिस्टेक क्या करते हैं? नेक्स्ट मिस्टेक इज, जैसे जनरल रूल क्या है, व्हेन पीपल अंडरस्टैंड लिटिल वास्तु व्हाट दे विल डू इज, मेरा ये जोन कट है, मैंने यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप लगा दी. कॉपर क्या है? अग्नि तत्व है. अग्नि तत्व को पानी की जोन पे कैसे लगाओगे भाई? नो. सो स्ट्रिपिंग शुड आल्सो बी प्रॉपर अकॉर्डिंग टू दी जोन्स. स्ट्रिप कर रहे हैं, सो 5 एलिमेंट थियरी से कॉन्सेप्ट में लेके आएंगे कि इस जोन को मुझे एग्जॉस्ट करना है, मतलब डिस्ट्रॉय करना है, तो व्हाट इज एलिमेंट आई यूज. इस जोन को मुझे क्रिएट करना है, तो व्हाट इज एलिमेंट आई विल यूज. सो पंच तत्वों को जब तक नहीं समझोगे आप कंप्लीट वास्तु नहीं कर पाओगे. Fire. 5 element is important, very very important to understand on the 5 element theory. समझे? नेक्स्ट कहां पे फंसोगे, मतलब कहां कहां पे प्रॉब्लम्स आएगी. सो नेवर डू ए कंप्लीट वास्तु करेक्शन, फर्स्ट पॉइंट. ओके, नेवर बिलीव इन डिस्ट्रॉइंग थिंग्स. ओके. थर्ड, फाइंड आउट इन लास्ट 2 years 3 years कब से वास्तु चेंजेस हुआ है, उसके बेसिस पे ट्रीटमेंट करना है, ना कि अपने नॉलेज में भैया यहाँ तो नहीं आना चाहिए, तो रेड जोन होना चाहिए, ये अग्नि का जोन है, रेड बल्ब लगा दो. यहाँ पे अग्नि नहीं है, रेड बल्ब लगाने के बाद एक्सीडेंट्स होना चालू होते हैं. समहाउ फायर वाज बैलेंस्ड, आपने रेड बल्ब लगा दिया और वहां पे चालू हो गए एक्सीडेंट, चालू हो गए डिस्टर्बेंस, चालू हो गए एंगर इश्यूज, चालू हो गए घर में. सो नेवर यूज कलर्स प्रॉपर, यूज कलर्स प्रॉपरली, नेवर यूज अबनॉर्मली. ओके, करना है करके वास्तु कभी भी नहीं करना है, ये खाली ध्यान रखना है. हमें वास्तु से पैसा नहीं कमाना है, अपने आप मनी आएगा. आपकी जो भी फीस है 10,000 रखो, 11 रखो, 21 रखो, 51, टू योर पोटेंशियल. ओके, वॉट एवर, मनी विल कम ऑटोमेटिकली इफ इट इज रिटन थ्रू वास्तु, आपको पैसा आएगा. नहीं तो बेस्ट सीख लो, नहीं लिखा है तो एक पैसा भी नहीं आएगा. यू विल एंड अप डूइंग टू योर हाउस, यू लिव हैप्पीली रादर, एंड यू विल नॉट लैंड अप डूइंग इट फॉर एनीवन. तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी है. तो वास्तु के जो कॉन्सेप्ट हैं, प्रिंसिपल्स हैं, इट विल नॉट अप्लाई एब्रप्टली टू एवरी प्लेस. सिम्टम्स मैच करो एंड देन वास्तु करो. दैट इज वेयर यू स्ट्राइव एंड यू विल थ्राइव. आप कॉन्फिडेंटली बोलोगे ना, आपका ये जोन डिस्टर्ब था, क्लैरिटी नहीं थी, मुझे यही जोन ठीक करना है. इफ यू आस्क लाइक ये क्या कर रहे हो मैडम, रीजन, हम नहीं बोल सकते ना, ये वायु का तत्व है, यहाँ पे पानी और वायु होना बहुत जरूरी है. वी कैन नॉट से ब्लाइंडली. तो वो सिर्फ बिलीफ सिस्टम को छेड़ना होता है. वी आर गोइंग मोर ऑफ साइंटिफिक सिस्टम. देवतास वास्तु, न्यूमरो वास्तु, एस्ट्रो वास्तु, ये सब एडवांस एडवांस एडवांस, इसका कोई लिमिट नहीं है. वी आई हैव लर्नड एवरीथिंग. ओके, चलो और कहाँ पे अटकोगे? But advanced वास्तु में more अपन learn एडवांस वास्तु में जो सीखोगे ना, आप सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो, सारे के सारे. एस्ट्रो वास्तु में 1 पॉइंट सोल्यूशन होता है, न्यूमरो वास्तु में नंबर से सोल्यूशंस होते हैं. फेंगशुई से सिर्फ एनर्जी बैलेंस होती है, हवा ना, फेंगशुई का जो विंड ब्लो होता है उसके हिसाब से एनर्जी चेंजेस की जाती है. क्रिस्टल वास्तु से, न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वहां पे क्रिस्टल धारण किया जाता है. बट अल्टीमेट इज वैदिक वास्तु. ये वैदिक वास्तु का कॉन्सेप्ट पर आ जाता है, यही है अल्टीमेट. अपने धर्म में यूज कर पूरा का पूरा यूज कर सकते हो, पूरे के पूरे यूज कर सकते हो. धर्म में किस ऑप्शन में यूज करना चाहते हो? मतलब Like- कुछ चीज वो गलत है, अपन उस धर्म में ऑक्यूपाई करके, मतलब धर्म का कुछ करके उस चीज को occupy लाइक मैं समझा नहीं, बी मतलब स्पेसिफिक. अब ये दिशा गलत है, ये मंदिर लगा हुआ है एक गलत दिशा में, बट मैं उसको तोड़ा नहीं सकती, कुछ भी नहीं कर सकती. वहां पे हम करेक्शंस कर सकते हैं. करेक्शन कर सकते, धर्म का करेक्शन कर सकते हैं, हम कुछ चीजें क्रिश्चियन वगैरह लगा के
धर्म मतलब क्या चीज? जैसे मंत्रा नवरात्र जाप। मंत्र, हाँ, मंत्रा जाप से आप एनर्जी क्रिएट कर सकते हो, लेकिन जो एलिमेंट एस्टेब्लिश है उसको कैसे बैलेंस करोगे? तो वहां पे करेक्शंस करना ही बेटर रहेगा। तो फिर वहाँ पर लाइक क्या क्रिस्टल्स वगैरह? स्ट्रिपिंग्स, क्रिस्टल्स, काफी सारे मेथड्स हैं। खाली कलर टेप से भी काम हो जाता है, जो 70 रुपए का एक टेप आता है उससे भी काम हो जाता है। योर कंसल्टेशन इज ओनली चार्जेबल, प्रोडक्ट्स एलिमेंट्स आर नॉट। कॉस्ट टू कॉस्ट भी दे दो आप क्लाइंट को, वी डोंट हैव बट टू। ये रिजल्ट मिलता है ये तो रिजल्ट ओरिएंटेड वास्तु है, इससे रिजल्ट मिलता है। सही कलर सही कॉम्बिनेशन यूज करना जरूरी है। आप उस तत्व को एस्टेब्लिश कर रहे हो ना उस घर में। ओके। मतलब जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ, मेरे पापा के घर पे लाइक 10 इयर्स हो गया घर में कलरिंग वगैरह करके, हम्म। बट उनका 10 इयर्स अच्छा चल रहा था, बट अभी सडनली 3 इयर्स में उनका ना कुछ वर्क हो पा रहा है, घर पे हेल्थ इशू होता है उस ज्यादा। 3 इयर्स में उन्होंने क्या चीज नई लाई है? तिजोरी नई लाई है, मंदिर नया बनाया है, तिजोरी मूर्ति लाई है। रुक रुक बोलता हूँ देख। तिजोरी नया लाया है, मूर्ति लाए हैं नया, बेल्स लाए, घंटी लाए होंगे मंदिर में, कॉपर का, तांबे का कोई ना कोई चीज लाया होगा मंदिर में, या अग्नि जैसे गैस स्टव चेंज किया होगा, या गैस का स्लैब चेंज किया होगा, या कॉपर के वेसल्स, कॉपर के बर्तन लाए होंगे, उसको रखा होगा, या चांदी खरीदी होगी, उसके बाद डिस्ट्रक्शन। यस मैम, चीजों को पकड़ना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तिजोरी अभी लाई है, आई थिंक लाइक 3 इयर्स हो गया होगा। चेक कर तिजोरी किस दिशा में रखी है, कौन सी तिजोरी है, कौन से कलर का तिजोरी। क्या तिजोरी हरा तो नहीं है? ब्लू है, पानी का तत्व है, ला दिया अर्थ में तूने, हो गया, मिल गया आंसर। वाटर एलिमेंट ब्लू, आपने साउथ वेस्ट में रख दिया, अर्थ एलिमेंट पे रख दिया है, तो डिस्टर्ब हो गया ना। पेंट करा दे येलो कलर, बस। येलो कलर कपड़ा बिछा दे तिजोरी के ऊपर, चेक कर ले फर्स्ट, नेवर ट्रस्ट। येलो कलर का पेपर लेके आ जा, उस पेपर को ऊपर चेप दे, अच्छा रहा तो येलो कलर का पेंट मार देना, ब्लू को हटा देना टोटली। समझे ना? कुछ डिस्टरबेंस किए बिना। आज इसलिए मैं इंट्रो दे रहा हूँ, आज आज इंट्रो दे रहा हूँ। ये नहीं, ये करेक्शन है जो मैंने बताया, ये करेक्शन है। नहीं, हाँ वो आप बोल रहे थे करेक्शन, आप वो आपकी गलत भी में लेने, वो मेरे को नहीं चाहिए। आपसे बोलो येलो कलर का पेपर, चार्ट पेपर लेना है, बट चेप दे उन्हें, मैं चेपू, कैसा है देखते हैं, गलत तो होने वाला नहीं है। पीलो कपड़ों रख दीजिए ऊपर, सिंपल। तो फर्स्ट, इसलिए फर्स्ट इंट्रो क्लासेस समझो कि हम क्या करने वाले हैं इस वास्तु क्लास में। व्हाट इज दैट वी आर गोइंग टू डू? वी आर गोइंग टू फाइंड आउट थिंग्स, दैट्स इट। घंटियां लाना, कॉपर की चीजें लेके आना, जैसे बॉटल पसंद आया होगा, बॉटल लेके तो आ गए होंगे, लेकिन यूज नहीं करेंगे, रख देते हैं। सो अग्नि को रख दिया ना। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स जो नहीं चल रही है उसको, लैपटॉप जो नहीं चल रहा था उसको स्टोर करके रख दिया, राहु को लेके आ गए, दैट बिकम्स एन एस्ट्रो वास्तु सोल्यूशन फाइंडर। एस्ट्रोलॉजी भी। लेके आना भी देखना पड़ता है। हाँ, क्या चीज लेके आए हो, क्या चीज की हो, 2 साल में इट्स नॉट इजी। when I say my charges are 21,000 या 31,000 for वास्तु कंसल्टेशन, इट्स द बेसिक। जब प्रॉपर वास्तु कंसल्टेशन करते हैं, मुझे डीपली फाइंड आउट करना है, 1,25,000 प्रॉपर, क्योंकि सोल्यूशन देना है ना। वो सोल्यूशन के कारण दे आर गोइंग टू अर्न सो मच ऑफ मनी, they will not count. So but 11,000 is a minimum consultation, then 21, 31, based on what kind of solution they want. Many people just say हमें सिर्फ दिशा बता दो, बस है 11,000 रुपीज या 5,000 रुपीज, आ जाओ दिशा खाली बता देता हूँ कहाँ कहाँ पे क्या रखना है। दैट विल बी माई 8 जोन वास्तु, दिमाग नहीं लगाऊंगा 16 जोन के लिए, नहीं लगाना। अपने को जितना है, आगे वाले को जितना चाहिए उतना ही देना, अब में कितना ज्ञान है नहीं बताना। वो ज्ञान अपने आप समझ में आ जाएगा, लोगों से सुनेंगे कि मेरा करने के बाद बेटर है, आपका मेरे भी कराया लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो वो बात करेंगे कि आपने कौन सा कराया कि मैंने कौन सा कराया। 8 जोन मतलब 8 जोन इज बेस्ड ऑन दोज हु डोंट हैव अ ट्रस्ट। वहां पे मुंह भी नहीं खोलना है, वास्तु का वी भी नहीं बोलना है। समझी? मुझे वास्तु, आपने विश्वास है कहीं सा, विश्वास नहीं है तो छोटा सा, ये सबसे भ्रमरी चीज है, हमें निकल जाना है वहां से, नहीं बोलना है। वहां पे बोलेंगे तो 4 शब्द हमें सुनाएंगे, हमें डिजेक्ट करके डाउन करके छोड़ देंगे, नहीं बात करता हूँ। एक ही बार, डू यू बिलीव इन वास्तु, देन लेट मी डू अ करेक्शन।
बाय फोर्स किसी ने बोला तो मत कराओ सर, कुछ नहीं होगा, क्योंकि एवरीवेयर सबकॉन्शियस माइंड प्ले ए रोल। अब पानी भी रख दो, वो अर्थ करके रख दो तो वो अर्थ का काम करेगा पानी रखने के बाद भी। सो सबकॉन्शियस प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन वास्तु करेक्शन। सबकॉन्शियस प्लेस ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेल्थ एंड हीलिंग्स। काफी लोग बोलते हैं ना डॉक्टर साहब आप कर दो तुम्हारा बेटर रहे, उनका सबकॉन्शियस कनेक्टेड हो जाता है ना कि मैं करूंगा तो दे फील गुड एंड बेटर। ट्रीटमेंट तो वही होगा जो मेरे स्टाफ करेंगे। हाथ का फर्क हो जाता है, सोच का फर्क होता है, हाथ कभी नहीं फर्क आता है, उनकी एक्सेप्टेंस की फर्क आती है, समझे। बट ऐसे लगता है ना जिनसे कराए उन्हीं से कराए। हाँ वो एक रहता है, सबकॉन्शियस कनेक्ट हो गया ना, एनर्जी अच्छा लगा ना, इसलिए। सो समझे। सो हम कहाँ कहाँ पे अटकेंगे, कितना करना है कितना नहीं करना है, वह सब समझना जरूरी है वास्तव में। ये नहीं कि खाली समझ लिया और सीख लिया एग्जीक्यूट कर दिया, हम क्यों करते हैं करके समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट कहाँ पे आओगे। सो वास्तु हो गया, करेक्शंस हो गया, दिशाशूल पढ़ेंगे। ओके, जैसे गली, कौन से गली के सामने रह सकता है घर, कौन से गली के सामने नहीं रहना घर, दिशाशूल कॉन्सेप्ट भी पढ़ेंगे। ऑलराइट, कलर्स कॉन्सेप्ट आ गया, डोर्स कॉन्सेप्ट आ गया, 32 एंट्रेंसेस इफेक्ट भी पढ़ेंगे। एंट्रेंसेस होते हैं टोटल वास्तु में, ओके, 32 एंट्रेंसेस होते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये नॉर्थ है, इसको हम लोग 8 जोन्स में डिवाइड करेंगे। ये साउथ है, इसको 8 जोन्स में डिवाइड करेंगे। ईस्ट वेस्ट है, इसको हम लोग डिवाइड करेंगे। सो सपोज ये ईस्ट हो गया, साउथ हो गया, वेस्ट हो गया, नॉर्थ। सो टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइक दिस वी हैव 32 एंट्रेंसेस इफेक्ट। कौन से जोन, हाँ घर का एंट्रेंस भी सही दिशा में होना चाहिए। 50 से 60% वास्तु वहीं से जाता है। आप गलत एंट्रेंस में रखोगे ना तो वहीं से वास्तु की करेक्शंस स्टॉप। सबके सॉल्यूशंस आते हैं। गलत दिशा में घर है तो उसको कौन सी टेप से स्ट्रिप करना है। अपना खुद का घर है तो स्ट्रिपिंग मारो, भाड़े का घर है तो टेप कर दो। सब घर में सेम करेक्शंस होते ही होते हैं। हेल्थ इश्यूज मैंने सॉल्व कर चुके हैं, सिर्फ रेड कलर येलो कलर टेप से हेल्थ इश्यू सॉल्व कर चुके हैं। घर के छोटे 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 प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं अभी शिफ्ट हुई हूँ, बट मेरा हेल्थ इशू होता जा रहा है। बट मेरे उस रूम में बोला गया कि ब्राउन कलर ही रखना, ब्राउन एंड ग्रेइश करके। अब ग्रेइश इज डर्टी वाटर, गंदा पानी बोलते हैं ना ग्रे। पानी जब गंदा होता है तो क्या कलर रहता है, ग्रे, ब्लैक। ब्लैक एंड ग्रे या डर्टी वाटर बोलते हैं। पानी का एलिमेंट उसमें कैसे आया, ब्राउन और ग्रे कैसे मैच होगा। आप अपना घर का ग्रिड बनाओगे ना तब देख लेंगे। ओके, अपना घर का वास्तु कर लेना। ओके, सो समझिए। मैं अपना घर का तो नहीं करूंगी, मेरे कोई घर पे बिलीव नहीं करता। नो, इनडायरेक्टली डू इट ना, विदाउट टेलिंग देम। काफी सारी चीजें इनडायरेक्टली होती है। मैं उनको बोलूंगी, वो लोग उस चीज का मेरे को नेगेटिव देंगे, मेरे को नेगेटिव नहीं लाना है। नहीं, अभी वास्तु, नो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज लास्ट। वास्तु किस लिए सीख रही है। मैं अपने लिए सीख रही हूँ, एक्चुअली आई एम इंटीरियर डिजाइनर। ओके, मेरा वो चीज रुक गया कितने साल से मैं नहीं कर पा रही हूँ, तो मैं अभी एटलीस्ट ये एक घंटा यूटिलाइज करूंगी। अगर मेरे को आगे कहीं इनके मेरे हस्बैंड के तो मेरे को जाने नहीं लगा तो मैं दोनों एक साथ। उनका क्या है, उसी उनकी क्लाइंट्स वगैरह उनके ऑफिस में अगर मैं बैठ के ये मेरा थ्रू कर सकूं कुछ तो मैं रहेगा, अच्छा रहेगा। क्योंकि लाइक अभी वास्तु में भी ज्यादा है, मतलब लोग कोई मानते हैं नहीं, काफी लोग मानते हैं, पॉजिटिविटी एनर्जीज पे मानते हैं, एनर्जीज पे मानते हैं। वास्तु इज ए गुड कॉन्सेप्ट, लेकिन सही सीखना, सही इंप्लीमेंट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक्चुअली अभी ये मैं घर पे बैठ के भी और आगे बढ़ सकती हूँ वास्तु अगर मैं सीखूंगी, क्योंकि अभी मैं बाहर नहीं जा पा रही हूँ, बेटा छोटा है तो ठीक है, इसमें 2 आवर्स निकाल सकती हूँ। हाँ, एवरी डे यू कैन लर्न अबाउट डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ना। ठीक है, तो ये अपना बेस रहेगा। यहाँ से हम लोग चालू करेंगे, गाड़ी पकड़ेंगे तो वी विल स्टार्ट विद अंडरस्टैंडिंग ईच एंड एवरी जोन। 5 एलिमेंट थ्योरी के बारे में और थोड़ा समझेंगे, जोन्स के बारे में और थोड़ा समझेंगे। इट्स अ डीप। तो आप जैसे एक दिन में ही वी विल अंडरस्टैंड, ओके इतनी सारी चीजें करनी है। तो दिस 13 या 14 आवर्स का जो क्लास रहता है, फाइनल कंसेप्ट दिशा शूल इज द लास्ट, दिशा विधि बोलते हैं। लास्ट टॉपिक अपना दिशाशूल रहेगा। तो हर एक क्लास में एक नया कॉन्सेप्ट ही जाता है।